equals to f of y by x. Z is equal to f of y by x. Okay. Yes, ma'am. Z is equals to, and I have to find del z by del x. To find del z by del x. Okay. Just wait. The function is given that z in terms of z is equal to f of y by x. Function is of Yes, ma'am. by x. Y by x. Okay, and you have to find Del z by del x, ma'am. so why we can't? What will be the answer, ma'am? That's why I Function. do. Is there any function or just this is the functional form of such kind? This is the functional form of such type. Only that functional form. Then you have to differentiate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So हम लोग पहले उस तरह का प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ले फिर ना करें ऐसे करोगे तो फिर तो बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग ना Okay, ma'am. कर सकते हैं बट जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर रहे हैं ऐसे करने से ज़्यादा बेटर है Okay, ma'am. Yes. और बहुत कम लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है क्यों ऐसा फिर से आज कोई क्लास थी क्या आप लोगों की इस टाइम में No, ma'am. That issue was resolved way earlier, ma'am. Now there is no such kind of issue. only 15 candidates are there 15. Total 16 participants are there one is me and another 15 rest of Ma'am, your voice is like breaking regularly, ma'am. okay am I clear sorry am I audible right now Yes, ma'am. Right now you are audible. distance and solve one question until or just we are waiting for the student suppose u we have trigonometric function u is equal to like tan inverse x square plus y square divided by xy. Try to solve this. Ma'am, first of all, we have to check whether it is homogeneous or not. Yes, of course. What about rest of you? All of you just turn on your camera. All of you, I said. Everyone have to. Vikash, roll number 41, batch 2. Turn on your camera. Yes, ma'am. कैमरा ऑन करिए नेक्स्ट कौन है रोल नंबर 8 विपुल कुमार जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा अभिषेक रोल नंबर 3 मनीषा रोल नंबर 20 बैच 2
Shankar. This is batch 1, 35 roll number. What are you doing? Am I audible to you or not? Yes, ma'am. Just turn on your camera. Who is this Abhishek? Roll number 2 and roll number 24, batch 1. Roll number 2, batch 1. एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ती है, कितनी बार सुनोगे? आराम से घर में एक कॉर्नर में बैठ जाइए सुबह से शाम तक, जब से क्लास है। कैमरा ऑन करिए। ये कौन है? कैमरा आप दिख ही नहीं रहे हो। 24 रोल नंबर। Yes, ma'am. Wait. Okay, 30. Batch 142, Raj Nandini. Manish, batch 2, roll number 19, 11, batch 1, Ansh. Abhishek, batch 2, batch 1, roll number 2. कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें? Ma'am, हाँ, ma'am, there is some issue in finding the homogeneity of this function, ma'am, because tan inverse is there. So tan inverse. So you can change it like this. Tan u, just put tan u is equal to but ma'am, we have x square plus y square divided by x plus y. Now you can solve it. so ma'am, here tan u will be homogeneous Excuse me, function, na, ma'am. Yes, So if tan u is homogeneous, we can say u is also homogeneous. yes, of course. Okay. Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए मुस्कान। मैम भेजना पड़ेगा मैम व्हाट्सएप पे बनने के बाद। बन रहा है, पहले बनाओ तो अटेम्प्ट देखो। अगर बन गया मैम। भेज देते हैं तो ठीक है, भेजिए, देखती हूँ मैं। गोलू कुमार, रोल नंबर 11, बैच 2। बना रहे हैं, सॉल्व हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर। बना रहे हैं। ओके, बना रहे हैं। मुझे ये बताओ, प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं उससे डिस्कस करूंगी। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया था। बस होमोजेनिटी वाला है, तो अब ये देखो tan u ऑलरेडी मिल चुका है, इतना टर्म आ चुका है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं होमोजेनिटी में, फिर सिंप्लीफाई कर देना है।
Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए. If we are checking the homogeneous, after solving that one, and we have to convert into the log, it is a necessary, ma'am. After checking homogeneity, what did you say? And after checking the homogeneous, and further we have to calculate, we have to convert in With the the help of Elio's theorem, you have to differentiate and prove that it is true for that Elio's theorem. It works. Sorry, Elio's theorem can be applied on this function. You have to establish the relation. एक ने मुस्कान ने तो बना लिया है, रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया था. चलो देखते हैं कैसे है. ठीक है, फिर एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ओके, जिन लोगों को आइडिया नहीं हो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला वो एक बार देख लो क्या है. लाइक देखिए हमारे पास जो फंक्शन था वो कुछ ऐसा है. u एक फंक्शन गिवन है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस y. और यहाँ पे क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो ये है, आपको प्रूव करना है ये. तो आप यहाँ देखना ध्यान से, जो टर्म लिखा है x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 1/2 sin u. तो यहाँ पे जो LHS में जो टर्म लिखा है वो देखिए ध्यान से क्या है. ये एलियोस थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या, जो होता है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, आपको कुछ प्रूव करना होता था एन यू. तो ये जो टर्म है वो क्या बता रहा है, एलियोस थ्योरम को. तो यहाँ पे एलियोस थ्योरम आपको अप्लाई करना है, तो ये टर्म आपको लाना है. और जब ये लाओगे सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा. तो यहाँ पे रिलेशन में दे दिया है प्रूव करने के लिए, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना क्या है, इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है जो आपको पहले से पता है. एलियोस थ्योरम का स्टेटमेंट है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई. अब अगर इसको जब सॉल्व करोगे, हमारे पास गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू tan इनवर्स 10. ठीक है, तो u अगर इसी चीज को हम लोग tan u लिख दें, क्योंकि आपको पता है थीटा के टर्म में लिखा रहता है, तो आप अगर लिख सकते हैं x का tan इनवर्स b बाई ए, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए है, आप tan इनवर्स b बाई ए और थीटा का टर्म जो आता है वो आप आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं. तो tan u के टर्म में हम लोगों ने ये लिख दिया. और इसको होमोजेनिटी वाला टर्म चेक करना है, पहला टास्क तो हमारा यही होता है होमोजेनियस है या नहीं. देन tan u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. होमोजेनिटी में कन्वर्ट कर दिए, देन x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई बाई x. tan u इज इक्वल टू ये टर्म आ गया, दैट मींस दिस इज अ होमोजेनियस. पता है अगर हम ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट मींस दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन. और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होगी यहाँ, 1 है ना. तो सिंपली लिख दिया x इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई बाई एक्स. ये टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू x इंटू 5 वाई बाई एक्स. और 5 वाई बाई एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजेनियस फंक्शन. तो यहाँ क्या हो गया, हमारे पास u नहीं tan u जो आ रहा है वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1 इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलिए. मैम कैमरा ओपन करना इम्पोर्टेंट है, हम लोग का लेक्चर सुनना इम्पोर्टेंट है. क्या बोल, मैम कैमरा ओपन कर रही हो, मुझे मतलब लाइक मेरी नेटवर्क वीक हो जा रही है, मैं एक भी क्लास में मतलब अटेंड नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से आपकी. बिकॉज ऑफ कैमरा. मैम मैं कैमरा ऑफ रख रही हूँ. कैमरा ऑन रखने से आपका नेटवर्क स्लो हो जा रहा है.
यस मैम, बार बार ही कनेक्टिंग हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही जो भी आपने बोला है। ठीक है, बंद कर लीजिए बोलना। मोबाइल डेटा ही यूज करते हो ना तुम लोग? यस मैम। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। So here tan Thank u you. is a homogeneous function of degree 1 in two independent variable x and y. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एग्जैक्टली वही टर्म आया है। अब यहाँ पे ये श्योर हो गया, वी कैन अप्लाई इलियोस थ्योरम ऑन दिस फंक्शन। सो इलियोस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। इलियोस थ्योरम हमारा जो है वो ये x, और हाँ यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, एक फंक्शन, चूंकि u के टर्म में रिजल्ट आ रहा है और tan u का फंक्शन है, तो हम लोग उसको v कंसिडर कर लेते हैं, tan u को रिप्लेस कर देते हैं v से। इलियोस थ्योरम अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू v। v यहाँ nu होता था और n का वैल्यू क्या है 1, सो सिंपली, और u इज इक्वल टू वेल tan u के जगह हम लोग v रिप्लेस कर चुके हैं, सो वी कैन राइट 1 इंटू v टर्म आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इलियोस थ्योरम। अब इसी थ्योरम को हम अप्लाई करने वाले हैं एग्जैक्टली जो फंक्शन है। चलो देखो, v इज इक्वल टू tan u, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जब डिफरेंशिएट करोगे डेल v बाई डेल x को, तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर u इंटू डेल u बाई डेल x। यहाँ पे आप u को डिफरेंशिएट फर्दर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि आपके पास जो रिलेशन स्टैब्लिश करना है वो इसी टर्म में करना है, लाइक ये। हाँ विकास बोलिए, क्या हुआ? बोले मैम आज ही नहीं टॉपिक स्टार्ट। हेलो, क्या बोल रहे हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया? नहीं मैम, बोले जो आज स्टार्ट किए थे कौन मी थी। हेलो, हाँ विकास, आप आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। बोले मैम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। पिछले क्लास में थे हम। लास्ट क्लास में थे, तो लास्ट क्लास के बाद ये क्लास है जो क्वेश्चन बता रहा है, जो कि यस मैम, ट्रिगोनोमेट्रिक लास्ट फंक्शन क्लास पे में बेस्ड थे। क्वेश्चंस है बस। हाँ, नया कुछ बताया मैंने? कुछ तो नया नहीं है, वही टर्म है, यही होमोजेनिटी प्रूव कर रहे हैं। फंक्शन हमको ये दे रहा है, फंक्शन में होमोजेनियस प्रूव कर रहा है। ये लास्ट क्लास में आपने नहीं पढ़ा था? प्रीवियस लास्ट में भी पढ़ा था और लास्ट में भी पढ़ा था। सेकेंड लास्ट भी याद करोगे तो ये फंक्शंस थे। लास्ट क्लास था जो हमारा, उसमें भी ये फंक्शंस थे, चेक करो। मुझे लगता है आप ही कहीं कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, इलियोस थ्योरम अप्लाई करना है, ये थ्योरम अप्लाई करना है। जब ये थ्योरम अप्लाई करोगे तो हमारे पास v जो है, v इज व्हाट, tan u। tan u, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करो, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर u, पता है ना? tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u, और डेल u बाई डेल एक्स की चेन रूल है, u डिफरेंशिएशन होगा कुछ, तो डेल u बाई डेल एक्स हम लोगों ने लिख दिया। क्या होगा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आएगा डेल u और डेल एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसे। अब इसी को x से मल्टीप्लाई कर दो। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल एक्स है, ये जो टर्म आया है उसमें x के टर्म को इंक्लूड कर दीजिए, दैट मीन्स x टाइम्स सेक स्क्वायर u इंटू डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा। इसी तरह v जो है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो tan का डिफरेंशिएशन फिर से सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y प्लस y इंटू डेल v बाई डेल y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, जो टर्म यहाँ आपने लाया है x टाइम सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स प्लस
y टाइम्स एक्स स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई। ये दोनों टर्म ऐड कर दो। जब ये दोनों टर्म ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू v, आपको पता है बाई इलियस थ्योरम यही होता है। तो ये वैल्यूज, अब v का वैल्यू भी आपको पता है, v इज इक्वल टू क्या लिखे थे देखिए, tan u। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में सारे वैल्यूज को रख दिया गया। ये डिफरेंशिएशन करके अभी हम लोग लाए थे यहाँ से ये वाला रिजल्ट, ये x इंटू सेक स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, और y वाले पोर्शन में y इंटू सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल वाई। ये दोनों टर्म यहाँ लिख दिया इंटू tan u। v का वैल्यू tan u है तो वो भी लिख दिया, खत्म। अब क्या करना है, यहाँ से देखो इन दोनों टर्म में सेक स्क्वायर यू जो है वो कॉमन है, कॉमन बाहर ले लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ से आ जाएगा y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, दैट इज इक्वल टू tan u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर्ड u है, तो आप चाहे और रिलेशन जो एलएचएस में प्रूफ करना था हम लोगों को, वो सिर्फ इसके टर्म में दिया हुआ है, तो ये टर्म हमारा एलएचएस में जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस टर्म को हम लोग इधर लेके चले आते हैं आरएचएस में। जब आरएचएस में इसको ले आएंगे तो होगा क्या, हमारे पास जो टर्म है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ये टर्म पूरा सेक स्क्वायर यू को इधर ले आए तो इतना लिख लिया, tan u डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर यू। अब इसी टर्म को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया था, लाइक क्वेश्चन में मेंशन था ना, आपको प्रूफ करना है दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1/2 sin 2u, ये प्रूफ करना था। अब चूंकि ये प्रूफ करना है तो टर्म जो प्रूफ करना है वो साइन के टर्म में आ रहा है, और हमारे पास जो रिलेशन आया है वो रिलेशन tan और sec के टर्म में आया है, tan u बाई सेक स्क्वायर यू। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और tan में, साइन और कॉस में, तब रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो tan का वैल्यू पता है आपको, tan u का वैल्यू sin u बाई cos u लिख सकते हो, 1 बाई सेक स्क्वायर यू को cos स्क्वायर यू भी लिख सकते हो। यहाँ पे cos u आ गया, यहाँ cos स्क्वायर यू आ गया, एक टर्म कैंसिल कर दो। ठीक है, जब कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा sin u इंटू कॉस यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, अब चूंकि ये sin u cos u के टर्म में आ गया तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, मतलब 2 से डिवाइड कर दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है इस टर्म को। जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो 1/2 ये है, और 2 sin ab क्या हो जाएगा, sin 2a होता है ना। तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। लेकिन ये इंटरचेंज सॉल्यूशन आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन प्रूफ करने वाला ना हो तो यहाँ तक भी लिखोगे ये आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर प्रूफ करने के बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्म में दिया हो, आपको ऐसा प्रूफ करना है, ऐसा टर्म लाना है, देन आपको इंटरचेंज करके ऐसा लाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरचेंज करने का ऑप्शन ना दे, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में ना बोला जाए, कुछ वैसा ऑप्शन ना हो, तब आप आराम से जो रिजल्ट ऑलरेडी निकाल के रखे थे वहाँ इतना पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रूफ करना हो तो आपको प्रूफ करने की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने ये जो 2-4 स्टेप बढ़ाया है वो उसी की वजह से बढ़ाया, अदरवाइज सिंपली वो चीज छोड़ सकते थे। ठीक है, क्लियर है ये है तो बताइए। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। और यहाँ देखो होमोजेनियस चेक करते पहले वहां पे बताइए, तो सेकंड स्टेप में होमोजेनिटी चेक करने वाले में, यस मैम, होमोजेनिटी चेक करने में यहाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। हमारा ये फंक्शन है, यहाँ से मैं ये हम लोगों ने तो पहले भी किया है, बताइए क्या कंफ्यूजन है इसमें। लास्ट क्लास में थे आप? यस मैम थे। हाँ, तो ऐसा नहीं किया था, देखो ना क्या किया है, मुझे बताओ, कोई स्टेप नहीं है तो बताओ। ये फंक्शन है हमारा, इसको tan इनवर्स जैसे हम लोग क्या लिखते हो, सिंपल तो बहुत सारे टर्म हमारे पास होते हैं जिसमें थीटा के टर्म में रिलेशन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है tan, जो tan थीटा लिखते हो,
tan थीटा इज इक्वल टू, मान लो क्या कुछ होता है, क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला बताओ, बताओ जल्दी। tan थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। यस मैम। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग बताइए? tan इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स b बाई a, या फिर जो p बाई b जो भी लिखा है। यस मैम। दोनों अलग अलग मीनिंग करता है, मीन करता है। यहाँ थीटा बता रहा है एग्जैक्टली, यहाँ tan थीटा के टर्म में रिजल्ट दे रहा है, तो थीटा जो है उसी का ना फंक्शन हुआ। तो वही चीज इनवर्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, इनवर्स वाले फंक्शन को इनवर्स में ब्रेक नहीं रहने दिए, tan u कर दिए, ये tan इधर ले आए तो इतना लिख दिए। अब tan u जो है ये इसको होमोजेनिटी में कन्वर्ट करना पता है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऐसा टर्म लिखते हैं। यहाँ भी x कॉमन ले लिया, ऐसे टर्म लिख दिए, y बाई एक्स के टर्म में लिख दिया उसको। Ma'am, हाँ here tan u is homogeneous, so that's why we have taken u as homogeneous function. So is it a property, ma'am? फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में हमेशा ऐसा होता है, अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो उसके कोई भी फंक्शन होगा तो वो होमोजेनियस होगा। Okay. और यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात ही नहीं है, सिंपली यू टर्म अगर है, मैंने अभी कहा ना एंगल लेते हो आप, tan थीटा लेते हो या थीटा लेते हो, तो जो थीटा का जो टर्म्स है जैसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, वैसे ही tan थीटा के इनवर्स में दोनों टर्म क्या मीनिंग करता है, एक ही टर्म है ना, एक मैथमेटिकल वैल्यू बता रहा है, एक एंगल बता रहा है, एक एंगल का वैल्यू बता रहा है। सो टर्म्स क्या है, सेम ही है ना। सो यहाँ पे tan u के टर्म में रिलेशन आ रहा है, दैट्स इट। आप tan इनवर्स के टर्म में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड आएगा, दैट्स इट। और रिलेशन यहाँ प्रूफ करना है वो u के टर्म में दे रहा है। क्वेश्चन का डिमांड भी देखिए ना क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा जा रहा है, प्रूव दैट, जो समथिंग लिखा है दैट इज व्हाट, साइन टू u। सो u के टर्म में है हमारे पास, और साइन टू यू के टर्म में, तो यहाँ पे साइन कॉस टैन जो भी है आप उसमें सारा इनवर्स के फंक्शन में देगा, तभी तो वो इंटरचेंजेबल होता है ना। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, बस हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, tan से मल्टीप्लाई कर दो LHS में और RHS में, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब tan से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो tan u के टर्म में लिख दिया, है ना। Yes, ma'am. तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही सिंपली समझ लीजिए क्या है। और ऐसे फंक्शंस हमें मिलेंगे। इनफैक्ट जितने भी फंक्शन अगर इनवर्स के फंक्शन में आते हैं तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, बेटर ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि फिर अगर होमोजेनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आता चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स तो मुझे बनाना नहीं है, एक तो होमोजेनियस प्रूव करने के लिए ही हमें बताना होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को लिखना होता है, देन पावर्स के टर्म में प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे बस लास्ट में मेंशन कर दीजिए जो होमोजेनियस फंक्शन आ रहा है वो tan u का आ रहा है, नॉट u, दैट्स इट। मैम सेकंड पे दिखाएगा तो सेकेंड पेज, ओके, यहाँ पे यस मैम। इन सब में
अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। Yes, ma'am. Solve. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए फॉर 3 वेरिएबल्स ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो बन गया है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने बनाया है पक्का? Have solved, ma'am. चलो, अगर बनाया है ना तो मुझे एक क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। W is equal to log x cube plus y cube plus z cube। एलियोस थ्योरम को वेरीफाई करो इन दिस केस। ठीक है, चूंकि 3 वेरिएबल्स के केस में आपने सॉल्व किया है, अगर इसको सॉल्व करके दिखाइए तो मुझे क्या है, log ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। ठीक है, ये सॉल्व करके देखो। वेरीफाई करना है आपको एलियोस थ्योरम फॉर दिस केस, फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या कुछ बोल रहे हैं? I didn't attend the class, ma'am. So please some hints. लास्ट और सेकंड लास्ट? Last class, ma'am. Last class, no problem, then you can do it. If you have attended the second last class, then you can do it. Because I think that class I have discussed Ilios theorem, and last class problem solving in yours. Ma'am, first of all, with homogeneous function, then after solving. Yes, you have to just this is the condition, because that Ilios theorem can be applicable only when the function is homogeneous, because that is the Ilios formula for homogeneous function. Ilios theorem for homogeneous function. So first of all, you have to check the homogeneity, whether this function is homogeneous or not. If it is homogeneous, then you can use it. Then you can apply Ilios theorem on that. Otherwise, you can't. Till evening or tomorrow morning, till tomorrow morning, I'm going to give you some assignments on this mathematics, on Leibniz theorem, on successive differentiation, and
this function, that is Gauss theorem, Leibniz theorem, homogeneous Maclaurin series and Taylor series. Or just, I think, we can remove all this, which would be easier for all of you to solve. Easier for all of you. That means successive differentiation based, Leibniz theorem based, Maclaurin's theorem based, or just we can include all these terms. Homogeneity and Maclaurin's theorem based. Tell me, because I have to give assignments. बताइए. एक काम करते हैं हम लोग, successive differentiation, Leibniz theorem and Taylor's theorem and Maclaurin series, इन सारे का क्वेश्चंस एक असाइनमेंट में कर लेते हैं. नेक्स्ट असाइनमेंट में हम लोग ये जो आपका टर्म्स है होमोजेनिटी एंड लियोस थ्योरम पे बेस्ड करेंगे. ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स का दे रही हूँ, 8 to 9 क्वेश्चंस, जिसको आपको कंप्लीट करके मुझे टिल द एंड ऑफ दिस वीक सेंड करना है. ठीक है, क्लियर है? ये आवाज नहीं जा रही मेरी? ठीक है, तो उतना तक का प्रैक्टिस कर लो जो भी है. बट हाँ, असाइनमेंट में क्वेश्चंस में हेल्प मत मांगिएगा, प्रैक्टिस करके देखिए, बनाइए, वो आपका बनना चाहिए.